Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. So now we are resuming the exercise 1.4 of R.D. Sharma, question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं 2 ही एग्जाम्पल अभी करवाऊंगा, बाकी के आप सेल्फ प्रैक्टिस में कर लेना, ठीक है? एंड I got a third one. 5/4 minus 7/6 minus -2/3, and the second one is fifth one, 5/6 plus -2/5 minus -2/15. ओके, सो इनके अलावा जो बाकी के 4 एग्जाम्पल्स है वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में होमवर्क में करने हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ वी गेट द LCM of 4, 6 and 3. So now we are getting 4, 6 and 3. First of we are divided by the 2, because here 4 and 6 both are divided by 2. So 4 divided by 2 it become a 2, 6 divided by 2 become a 3 as it is. Now again the 2 is divided by 2, so 2 divided by 2 become a 1, 3 is not divided by 2, 3 is not divided by 2. So now 3 is divided by this 2 number, so 1, 1 and 1. So LCM is what? 2 multiply with 2 multiply with 3. 3 to the 6, 6 to the 12. Okay, so here 5/4 multiply with 3 multiply with 3 minus 7 multiply with 2, 6 multiply with 2 minus -2 multiply with 4, 3 multiply with 4. So it become 5 3 is a 15/12, 7 to the 14/12 minus 4 to the -8/12. Let's say it. Now 12 is the denominator of the whole number, so here we can get the addition or subtraction of numerator, so that 15 as it is, minus sign as it is, 14 as it is. Now here -8/12 as a LCM. So here 15 minus 14 minus plus 8/12. Now first we get the addition. 15 plus 8 it become a 23, or you can get the subtraction. 15 minus 14 it become a 1, 1 plus 8 become a 9/12. So here 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 common factor cut, then answer will be 3/4. Okay, so write down your question and answer. Now the next example, let's see here, in the denominator of the all terms we can see here 6, 5 and 15. Now we know that what in the 6 table, 5 table and 15 table, 30 is the common multiple of first number, because of 6 5s are 30, 5 6 are 30 and 15 2s are 30. ठीक है, अगर आपको मालूम हो कि दिए गए नंबर्स में से कोई नंबर उसमें LCM directly आपको दिखाई दे रहा है, then you can't do this method. Okay, you can write it directly LCM, because of it's not necessary to write the method of how to get the LCM. But if you don't know and the denominator is given the bigger number, then you can use this method. Okay, so now we know that very well. The LCM of 6, 5 and 15 is 30. So we can directly write down. Okay, so that 5/6 multiply with 5 multiply with 5 plus as it is -2/5 multiply with 6 multiply with 6 minus -2/15 multiply with 2 multiply with 2. Okay, so that therefore 5 5s are 25/13, 6 2s are 12 but minus upon 13 minus 2 2s are 4 but minus upon 13.
So here all terms denominator will be same, so we can get the addition and subtraction of given number. So 25 plus minus 12 minus 4 upon 13. So that here 25 as it is, plus minus minus 12, minus plus 4 upon 13. So you can get 25 minus 12, it become a 13, okay, and 13 plus 4 it become a 17. Then answer will be 17 upon 13. आपको डायरेक्टली ना आए तो आप छोटे छोटे एग्जांपल इस तरह से लिख सकते हैं, 25 minus 12 plus 4 upon 30. Now you can get the 25 minus 12 become a 13. So you can write here 13 plus 4 upon 30. Now 13 plus 4 become a 17 by 30. Okay, तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है. ठीक है, राइट डाउन द ऑल क्वेश्चन एंड ऑल एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.4 है. ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है. ठीक है, और ऑलरेडी आपने 7th में और 8 की NCERT में भी कर लिए, इसीलिए मैं जो यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल है वही करवाऊँ, बाकी सब आपको प्रैक्टिस में करना है. क्योंकि घर पे तो आप पूरे दिन रहते हो, स्कूल पे तो आना नहीं है, आपके पास टाइम ही टाइम है. क्या आप टोटली फ्री हो तो इस तरह से एग्जाम्पल करके आप अपना टाइम बचा सकते हो. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर. Multiplication of rational number. We know that. What is the multiplication? If A by B and C by D is rational number where B and D does not equal to 0. B और D 0 होने चाहिए नहीं. ओके, देन मल्टीप्लाई it to each other like A upon B multiply C upon D इज इक्वल टू. अब देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की तरह ये मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं अप्लाई होगा. एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते थे कि भाई दोनों के डिनोमिनेटर जो होते थे उस डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के दोनों को सेम करते थे, मतलब लाइक फ्रैक्शन करते थे. बाद में सिर्फ जो न्यूमिनेटर होता था उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता था और डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉमन लिखा जाता था. दिस इज द मेथड ऑफ addition and subtraction of rational number, but in the multiplication is the different or easier from addition and subtraction. Like अगर कोई एक फ्रैक्शन नंबर या तो एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर विद द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर. Solve, nothing hard. Like 1/2 multiply with 8/3. 1/2 multiply with 8/3. तो यहाँ पर डायरेक्टली न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो यू कैन सी यार, अब देखो ये तो ख़त्म हो गई बात. 8/2 multiply with 3, 8 1 ज़ा 8, 2 multiply with 3 एज इट इज़ लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे फैक्टर निकालना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ दिस वन इज़ द नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है. सो 8 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 2 multiply with 3, 2 to cut, then आंसर विल बी 4/3. तो इस तरह से हम कोई भी बड़े नंबर्स या छोटे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन
रेशनल नंबर के निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.5। इतना लिखना हो तो लिख लीजिए, छोटा सी बात। वैसे भी आपको ये चीज़ तो वैसे भी मालूम होगी, 7th में हमने पढ़ा था और 8 में भी हमने पढ़ा था। सो एक्सरसाइज 1.5 आज हमें ख़त्म करनी ही करनी है, कैसे भी करके। ठीक है, क्योंकि तभी हम इस साल में 2 से 3 एक्सरसाइज कर पाएंगे, करनी ही करनी है। चलो सभी में से 2-2 एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, बाकी क्या प्रैक्टिस में करना, ठीक है। अगर ना हो तो मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई 7/11 बाय 5/4। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7/11 मल्टीप्लाई बाय 5/4, 7 मल्टीप्लाई विथ 5/11 मल्टीप्लाई विथ 4, 7 5 = 35/11 4 = 44। बात खत्म। उसके बाद 6 वाला करवाऊंगा, ये फर्स्ट वाला था। नंबर खास नोट करना है, एक न एक एग्जाम्पल रिपीट ना हो जाए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल आपको सेल्फ प्रैक्टिस में ज़्यादा करने हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि RD शर्मा का काम ही ये है, जो चीज़ पढ़ी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की है। -11/13 मल्टीप्लाई बाय -21/7। ओके, so first we multiply -11/30 multiply -21/7. So here we know that -11/30 both are the prime number, so we can't get the factor of it. So but here 21 is -3 multiply with 7/7. 7 3s are 21 plus minus minus, here common factor will be cut. So -11 multiply with -3/13, क्योंकि 13 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा। 13 1s are 13, 11 3s are 33, माइनस माइनस प्लस। ओके, एंड लास्ट वन, उसके बाद वाला ही करवा देता हूँ। -3/5 मल्टीप्लाई विथ -4/7। बड़ी बात ही नहीं है, ये माइनस जो आगे लगा है इसको ऊपर लगा देते हैं पहले। नाउ गेटिंग -3 मल्टीप्लाई विथ -4, 5 मल्टीप्लाई विथ 7, 4 3s are 12, माइनस माइनस प्लस अपॉन 7 5s are 35। टोटल 8 एग्जाम्पल्स है। 8 एग्जाम्पल्स में से मैंने 3 यहाँ पे करवाए हैं, आपको बाकी के 4 होमवर्क में करना है, ठीक है। अगर कोई भी एग्जाम्पल्स में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो, तो आपको उसको शिफ्ट करके न्यूमिनेटर में रख देनी है, ठीक है। तभी आपको इजी से सिंप्लीफाई करने को मिलेगा। ये बात आपको माइंड में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई, फर्स्ट वन इज -5/70 बाय 51/-60, ठीक है। सो बड़े नंबर होगा तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव साइन अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए। सो यू कैन गेट -5/70 मल्टीप्लाई -51/60। अब देखो यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमिनेटर विथ न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर विथ द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे आपको 17
और 51 का कुछ रिलेशन मिलेगा, 5 और 60 का कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल -5 1 ज़ा 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे -17 3 ज़ा 51 अपॉन 17 एज इट इज़ यहाँ पे 12 5 ज़ा 60 12 5 ज़ा 60। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या क्या मुझे मिले, फर्स्ट वन इज़ द 17, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 5 ये नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, देन यू कैन गेट -1 मल्टीप्लाई विथ -3, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे चला गया, मल्टीप्लिकेशन की साइन एज इट इज़, 17 17 कट, माइनस यहाँ पे चला गया तो -3 अपॉन 12। नाउ लेट्स सी इट, माइनस माइनस प्लस 3 upon 12, but 3 4s are 12, so you can get 1 upon 4 because of 3 upon 4 3s are 12, 3 3 cut, so 1 upon 4 is our answer. Now फिफ्थ वाला करवा देता हूँ, 8 upon -9 by multiply by -7 upon -16। तो फर्स्ट ऑफ ये नेगेटिव साइन ऊपर ले लेते हैं, -8 upon 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 7 upon 60। नाउ -8 मल्टीप्लाई विथ 7 upon 9 मल्टीप्लाई विथ 60, 8 2 ज़ा 60, माइनस साइन यहाँ पे चली जाएगी, -7 upon 9 2 ज़ा 18, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी 6 एग्जाम्पल्स है, उसमें से 2 एग्जाम्पल्स करवाइए, 4 एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क में करके मुझे कंपलसरी भेजना है। ऐसा नहीं है कि भाई चलेगा, अगर नहीं आया तो मैं फिर जस्टिफिकेशन मांगूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि भाई इतने लोगों ने नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा। Okay, now question number 3 is simplify each of the following and express the result as the rational number in the standard form। यहाँ पे भी मैं आपको टोटल कितने 8 है तो 3 करवाऊँगा, तो 5 आपको होमवर्क में हो गए। सिंपल ही है, -16 upon 21 मल्टीप्लाई विथ 14 upon 5। सो यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो -16 मल्टीप्लाई विथ 14, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर मिलेंगे, 7 2 ज़ा 7 की जगह पे हम 4 3 ज़ा नहीं 7 2 ज़ा ही हो गए, सॉरी 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। ओके, सो 7 7 विल बी कट। ओके, नाउ 16 में कोई कॉमन फैक्टर मिल ही नहीं रहा, तो -16 मल्टीप्लाई विथ 2, 3 मल्टीप्लाई विथ 5, 16 2 ज़ा 32 प्लस माइनस माइनस अपॉन 3 5 ज़ा 15, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, लेट्स सी हियर थर्ड वन, -19 upon 36 multiply with 16। So you can see here the second term is the integer because of they have no denominator. So first we convert into the fraction number, like a -90 upon 36 multiply 16 by 1. Because of if any number have no denominator, then we can put the 1 as a denominator. Now -90 multiply with 60 divide by 36. Okay, here 90 is the prime number, so we can't get the factor of 19, but 16 is equal to 8 2 ज़ा 16, here 18 2 ज़ा 36, 2 2 cut, again 4 2 ज़ा 8, here 9 2 ज़ा 18, again 2 2 cut,
So you can get minus 19 multiply with 4 divide by 9. Now you can't cut any factors of the numerator or denominator, so that 9 4s are 36, carry up 3, 76 upon 9 is our answer. But 19 is minus and 4 is plus, so you can get plus minus minus. So next one is third one. So भी सिंपल ही है, क्या करें, लास्ट वाला करवा देता हूँ. 8 minus 5 upon 9 multiply 72 upon minus 25. सभी इजी है. minus 5 multiply with minus 17 upon 9 multiply with 25. So you know that minus 5 ones are 5 multiply 9 8s are 72 upon 9 ones are 9, 5 5s are 25. So you can cut the common factor 5 5 9 9. Then you got minus 1 multiply with minus 8 upon 1 multiply with 5. Minus minus plus 8 upon 5 is our answer. So write down the question number first, third and 8. इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल्स है, इस तरह के सभी एग्जाम्पल्स है, यू कैन राइट इन योर होमवर्क फॉर सेल्फ प्रैक्टिस. ओके, नाउ question number 4. Simplify. The first one is 25 upon 8 multiply 2 upon 5 minus 3 upon 5 multiply minus 10 upon 9. Let's check it. Second one, fourth one is minus 9 upon 4 multiply 5 upon 3 plus 13 upon 2 multiply 5 upon 6. सेम एग्जाम्पल ही है. पहले आपको मल्टीप्लिकेशन के छोटे एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे, फिर वही एग्जाम्पल आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने पड़ेंगे. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ वी गेट द मल्टीप्लिकेशन सम लाइक 25 multiply with 2, 8 multiply with 5 minus 3 multiply with minus 10 upon 5 multiply with 9. So first of you cut the common factor of numerator and denominator, like a 5 5s are 25, 8 2s are 4 2s are 8. So you can get 5 upon 4 here minus, let's see here, 3 3s are 9, 5 2s are 10. So you can put here minus 2 as a numerator and upon 3. So now this example is the smallest example of subtraction. So now LCM of 4 and 3 is 12. So you can put here 5 upon 4 multiply with 3 multiply with 3. Because of you want to get the 12 as a denominator, subtraction sign as it is. Minus 2 upon 3 multiply with 4 multiply with 4. So now you are getting 5 3s are 15 upon 12 minus minus as it is, 4 2s are minus 8 upon 12. Now denominator will be same, so you can get the addition or subtraction of numerator 15 minus minus 8 upon 12. So here 15, here minus minus plus 8 upon 12. So 15 plus 8 become a 23 upon 12 is our answer. Same here. Let's see here. Minus 9 multiply with 5 upon 4 multiply with 3 plus 13 multiply with 5 upon 2 multiply with 6. So that here is 13 upon 5 here.
Yes. So now here 3 3s are 9. So you can get 3 5s are 15 plus minus minus upon 4. Addition sign 3 5s are 65 upon 6 2s are 12. So now we know that LCM of 4 and 12 is equal to 12. So minus 15 multiply with 3 upon 4 multiply with 3 plus 65 upon 12. 15 3s are 45 plus minus minus upon 12 plus 65 upon 12. Minus 45 plus 65 upon 12. So opposite sign subtraction, bigger value minus smaller value. 65 minus 45 become a 20 upon 12. So it become a 10 upon 6 is our आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के सभी एग्जाम्पल्स आप होमवर्क में कर लेना. तो आपको होमवर्क क्या हुआ, एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीटली सोल्व करने हैं.